Hi everybody, welcome again. I am discussing the remaining part, some more important parts in the chapter The Living World for class 11 students of CBSE board. And there are many aspects in this chapter, but the important ones you have to remember always. Like discussing about the characteristics of living beings, we were mentioning some characteristics which you already know, but you have to know in detail about some other features of living beings which will help you now onwards from the class 11 or 12 and also from the higher studies if you are interested in biology or in medical science. So this is all about the life or all about the living beings only. So the characteristics we had discussed, and you all are aware already. You have studied in the earlier classes about the living being characters. But there are some other features like reproductive system in as such. Reproductive system is an essential characteristic of living being, without which the species cannot continue. The existence of organisms in that particular species will not continue and the existence will stop. So that is an important characteristic, no doubt, of living being, essential characteristic, but that is not the ultimate characteristic to define a living or a non-living. Why? Because there are living beings who are not reproducing. Who are they? They are the mules. They are the sterile worker bees, and there are some human couples also who are sterile and reproduction does not take place. So they are surviving. They are growing. So how can you say that they are not living? Because without reproduction also they are living, they are growing, they are surviving, they are having all the other properties of living beings. So that is why reproduction is essential, no doubt, but it is not the ultimate characteristics to define a living or a non-living organism. To differentiate between a living or non-living and a non-living organism. But the question is that does any non-living being reproduce? No, that is also true. Non-living beings cannot reproduce. So that is explaining a non-living, properties of non-living. But you have to remember that reproduction or reproductive system is an essential characteristic of living beings, but not the ultimate. तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये चर्चा किया था कि क्या क्या लिविंग बीइंग्स का कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है. उसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक जो है चर्चा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम ज़रूरी तो है, लेकिन ये अल्टीमेट नहीं है कि किसी को भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को लिविंग या नॉन लिविंग कहने के लिए, इसलिए कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो बिना रिप्रोडक्टिव सिस्टम के भी सर्वाइव कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं. जैसे म्यूल्स हैं, जैसे स्टेराइल वर्कर बीज हैं, जिसको हम ये कह सकते हैं बांझ कार्यकर्ता मधुमक्खियाँ, वो जो है वहाँ पे रिप्रोडक्शन नहीं है. कुछ ऐसे कपल्स हैं ह्यूमन बीइंग में जहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं है, रिप्रोडक्शन नहीं है, लेकिन वो सर्वाइव कर रहे हैं, वो ग्रो कर रहे हैं, डेवलप भी कर रहे हैं. तो दैट इज़ वाई वी कैनॉट से दैट इफ देयर इज़ नो रिप्रोडक्शन it is a non-living substance. Without reproduction also living beings can be there. So this you have to remember. But non-living beings cannot reproduce. This is also true. कोई भी non-living being जो है वो reproduce नहीं कर सकता. Non-living substance reproduce नहीं कर सकता है. तो हमको ये जानना ज़रूरी है, याद रखना ज़रूरी है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है लिविंग बीइंग्स का
वो एक एसेंशियल प्रॉपर्टी है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन वो अल्टीमेट नहीं है लिविंग बीइंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स में. And besides this, we also have to discuss, or we have to remember that consciousness, awareness is again a very important, essential, inseparable characteristic of लिविंग बीइंग्स. लिविंग बीइंग्स का ये बहुत ही आवश्यक कैरेक्टरिस्टिक है, जो क्या है? अवेयरनेस, अनुभूति. हमारे अंदर अनुभूति है, हमारे अंदर फीलिंग्स हैं, हमारे अंदर जो अवेयरनेस है, हम वाकिफ़ हैं कुछ चीज़ों से जो नॉन लिविंग नहीं है. हमारे अंदर क्या हो रहा है, क्या केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, हमारे अंदर इतने केमिकल्स हैं, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, और सारे क्रिया प्रतिक्रिया हो रहे हैं, जिसके बारे में हम बहुत हद तक वाकिफ़ हैं. और जो बाहर में हमारे चेंजेस हो रहे हैं एनवायरनमेंट में, उसके बारे में भी हमारे अंदर अनुभूति है कि क्लाइमेटिक क्या चेंजेस है, वेदर क्या चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो ये सब जो अनुभूति या अवेयरनेस या फीलिंग्स, ये सब नॉन लिविंग में नहीं है. तो ये अल्टीमेट एक डिफरेंस है इसमें लिविंग और नॉन लिविंग में. जो कॉन्शियसनेस का जो कैरेक्टरिस्टिक है, अवेयरनेस का जो प्रॉपर्टी है, ये जो इंटरैक्शंस का है, तो आपस में एक दूसरे ऑर्गेनिजम्स का इंटरैक्शन और जो चलता रहता है ये लिविंग वर्ल्ड में. तो ये जो ह्यूमन टू ह्यूमन ये इंटरैक्शन है, बिना इसके एक जो है सोसाइटी हो, ये एक या लिविंग जो एनवायरनमेंट है वो पूरा नहीं हो सकता है. तो ये सब हम अगर सोचते हैं तो हमें ये प्रतीत होगा कि ये एक एसेंशियल या इनसेपरेबल कैरेक्टरिस्टिक है. क्या? कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस. अब ह्यूमन बीइंग के में अंदर अगर देखा जाए तो जो कॉन्शियस ह्यूमन बीइंग नहीं है वो क्या डेड हैं? जैसे कोमा में जो है वो डेड हैं? नहीं, वो डेड नहीं है, इसलिए कि उनका ब्रेन का कुछ पार्ट, जैसे ब्रेन स्टेम जो है, जो मेडुला ऑब्लंगेटा जिसको हम लोग कहते हैं, दैट इज़ हैविंग ए मिनिमल एक्टिविटी. कुछ एक्टिविटी उसमें है, इसलिए सब कॉन्शियस स्टेट में या जो आपके अंडर कंट्रोल नहीं है, वैसा कुछ थोड़ा सा रिस्पॉन्स जो है, स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग वगैरह, ये सारा कुछ जो है उसमें कुछ मिनिमल सेंसेस होंगे, कुछ मिनिमल एक्टिविटीज़ होंगे. सो दोज पेशेंट आर अनकॉन्शियस बट दे कैनॉट बी कॉल्ड लाइफलेस. सो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय consciousness, and there are different angles of this term. और इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा कि टैक्सोनॉमी में हम लोगों ने ये देखा कि टैक्सोनॉमी में जो एक सब्जेक्ट आता है उसका नाम है सिस्टमेटिक्स. तो सिस्टमेटिक्स में ये अध्ययन किया जाता है, ये पढ़ा जाता है कि ऑर्गेनिजम्स में एक दूसरे से क्या रिलेशन है, और आपका जो एवोल्यूशनरी क्या उसमें रिलेशन है, पहले से कोई एंसेस्ट्रल ट्री है तो उसमें से क्या रिलेशन आ रहा है. तो ये सब जो रिलेशंस एक दूसरे के बीच में क्या है उसके बारे में, उस अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप द अरेंजमेंट्स आर डन इन द different, the organisms are placed in the different categories, in the different taxas, in species, in genus and family. जो organisms को रखा जाता है वो इस systematics के आधार पर कि क्या उनके बीच क्या रिलेशनशिप है, evolutionary relationship है. तो दिस इज सिस्टमेटिक्स. और जहाँ तक आपका ये टैक्सोनॉमिकल जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में जो हायरार्की है
उसके बारे में जो हम लोगों ने देखा, तो उसमें सबसे पहले स्पीसीज़ है, द सिमिलर ऑर्गेनिजम्स आर केप्ट इन दिस स्पीसीज, दिस इज द स्मॉलेस्ट ग्रुप। और इसमें जो है दे शुड इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स, रिप्रोडक्शन उनके बीच होता है और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स भी प्रोड्यूस होते हैं। सो इन ऑर्गेनिजम्स कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स एंड कैन प्रोड्यूस योर फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। दे आर इंक्लूडेड इन स्पीसीज। अब स्पीसीज से जो है ऐसे तो प्लांट्स एनिमल्स में स्पीसीज तो ज़रूर होता है और द स्टार्टिंग पॉइंट है स्पीसीज टैक्सोनॉमी में। लेकिन बैक्टीरिया में क्या होता है, ये बैक्टीरिया में जो है, अब थोड़ी सी अगर सॉइल ले लें तो उसमें मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होगा। तो ये कैसे हो रहा है और क्या स्पीसीज़ का है, तो उसमें क्या स्पीसीज़ का डिफिनेशन हो सकता है बैक्टीरिया में। तो बैक्टीरिया में एक्चुअली ये जो है जीन्स शेयर होता है और डीएनए का पूरा अगर ट्रांसफ़र नहीं भी होता है विथ दी सेल एपरेटस, सेल एपरेटस तो कुछ है ही नहीं बैक्टीरिया में, तो डीएनए का एक पार्ट भी अगर ट्रांसफ़र होता है तो उसमें से ये मल्टीप्लिकेशन कंटिन्यूस। सो डीएनए बैक्टीरिया का जो स्पीसीज़ है उसको क्या कहा जाता है, डीएनए, इट इज़ डिफाइंड एज डीएनए हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिड के बाद जो हाइब्रिड होगा वो डीएनए के शेयरिंग से होगा, ट्रांसफ़र से होगा। सो इसलिए मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया दे आर एवरीवेयर। सो देयर इज सिमिलर टू द अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स, बट देयर इज लिटिल डिफरेंस ऑल्सो इन द स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया। तो ये स्पीसीज है। उसके बाद फिर सिमिलर स्पीसीज को रखा गया जेनस में। फिर ये हमने एक्सप्लेन किया था with examples in my video 1, and then genus के बाद what is there, family is there, family के बाद order है, order के बाद phylum है, phylum के बाद kingdom है। तो phylum में जो ये आपके similar types of animals, हाँ, वो क्लास जितने, ये मान लीजिए मैमेलिया है, तो मैमेलिया में जो भी एनिमल्स आते हैं इंक्लूडिंग मैन एंड अदर एनिमल्स, दे आर केप्ट इन मैमेलिया। तो सिमिलर क्लासेस जो है मैमेलिया में, ये सब जो हैं कॉर्डेट्स हैं, क्योंकि उस ऑल दीज हैव नोटोकॉर्ड्स, सो दे आर कॉर्डेटा, दे फॉल इन कॉर्डेटा। तो ये सब जो है फाइलम के बाद फाइलम में आते हैं। सिमिलरली अदर क्लासेस विल बी देयर ऑफ योर इंक्लूडिंग फिशेज एंड एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। तो ये सारे जो हैं एक फाइलम में आएंगे। फाइलम में फिर वो ये फाइलम जो है वो मिल के क्या बनाते हैं, द किंगडम। सो द किंगडम, ये प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमली। So these are the two biggest divisions in living organisms. So like this it will go on. So if we talk about one example, if we take, तो एग्जाम्पल किसका लें, जो हम हैं उसी का लेते हैं, दैट इज़ द ह्यूमन बीइंग, मैन। तो मैन का साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सेपियंस। सेपियंस इज द स्पीसीज, होमो इज द जेनस। व्हाट इज द जीनस के बाद क्या आएगा, फैमिली आएगा। व्हाट इज द फैमिली, फैमिली इज ह्यूमैनिटी, फैमिली इज होमिनिडी। जीनस इज होमो, फैमिली इज होमिनिडी, and order is Primata, and then the class is Mammalia and the phylum is Chordata. As I said, जो notochord है तो chordata होगा. So there is a notochord develops into the vertebral column. So this is chordata, phylum Chordata, if we talk about man, right? So ये आपको थोड़ा सा इसके बारे में भी जानकारी रखना होगा और याद रखना होगा। फिर जो वो टैक्सोनॉमिकल एड के बारे में हमने बात किया था, उसमें की एक एड है जो हेल्प करता है टैक्सोनॉमी में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज करने में।
तो वो उसमें होता क्या है एक्चुअली, ये हेड में कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का एक पेयर लिया जाता है जिसको कपलेट बोलते हैं, और उस पेयर से कोई एक कैरेक्टर को एक्सेप्ट किया जाता है और एक कैरेक्टर को रिजेक्ट किया जाता है, और इसी के आधार पर जो ऑर्गेनिजम्स को स्पीसीज में या जेनस में या ऑर्डर में रखा जाता है. So this is the aid by which organisms are kept in the different categories in the taxonomy. तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है तो एक को लिया जाएगा, एक को रिजेक्ट किया जाएगा. सो ये जो है उस ऑर्गेनिज्म के फीचर्स को अध्ययन करने के लिए, स्टडी करने के लिए बहुत हेल्पफुल है, और उसी के आधार पर ये कैटेगराइजेशन या कैटेगराइज किया जाता है. So students, I think I have covered almost all these aspects, important aspects. Now you have to read and learn and remember these important aspects, important points of this chapter. With that, I end my session here today. Thank you so much.